Hello dear student, welcome to Shivalik Study Hub. Before we will start today's topic, I want to tell you something that due to some technical issues, your classes has not been regular in the past few days. For that, I really apologize to all of you guys. And don't worry, I assure you that your classes will be held daily now. And as we are discussing about exercise 8.2 in our previous video, which is related to trigonometry chapter, and today we will solve exercise 8.3, which is totally based on the some trigonometric identities. So first we understand all the identities on which our exercise is based, then we solve exercise 8.3. And guys, if you have any doubt to related videos, then you can solve it by leaving a comment in a comment box. So let's start today topic exercise 8.3. And guys, if you like our videos, so don't forget hit the like button. Start today topic exercise 8.3. So guys, before we will start today topic, please share our channel to all the other students so they can also join us, because of due to your support we are motivated to even better for you. So let's start today topic exercise number 8.3. First we understand the trigonometry identities, then we solve exercise 8.3. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को समझते हैं और देन हम सॉल्व करेंगे 8.3 के क्वेश्चंस को, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी इन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड है. जब हम प्रूफ दैट बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे तो हमको इन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की ही हेल्प लेनी होगी. तो पहले हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग किस आइडेंटिटी को हमको वहां पर रिलेट करना है, ये चीजें हमको आनी चाहिए अच्छे से. तो पहले हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को समझते हैं कि कौन से ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज का यहाँ पर यूज होगा. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. The first identity is gives relation between the trigonometric functions sine and cos. The first identity is sin square theta plus cos square theta. We can find the two formulas with the help of these trigonometric functions. Like we can evaluate the value of cos in the step of sine, and we can evaluate the value of sine in the step of cos. So right here, the value of cos square theta is equals to 1 minus sine square theta. How we can write it? Here we use the the transformation rule. If we transfer the sine, the value of sine in opposite side, because of here it is written in the symbol of positive sign, and when we transfer it to the other side, it goes with the negative sign. So we can write here cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Also we can find the value of sine in the step of cos by using this identity. Sin square theta is equals to 1 minus cos square थीटा. देखिए, हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के रूल तो बहुत अच्छे से आते ही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमको क्या बताता है. जब भी हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है, वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं तो वो अपोजिट सिंबल के साथ में जाती हैं. यहाँ ये पॉजिटिव सिंबल है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव के साथ जाएगा. यहाँ हमने कॉस को ट्रांसफर किया है, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव सिंबल के साथ गया. तो कैसे हमने एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की हेल्प से कॉस और साइन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है. अब कहाँ पर इसको यूज करना है ये भी पता होना चाहिए. अगर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब वो वैल्यू होगी 1, या 1 ऑलरेडी गिवन है और हमको पूरा क्वेश्चन साइन एंड कॉस के स्टेप में बनाना है, देन वी यूज दैट आइडेंटिटी. अगर हमको कॉस की वैल्यू को साइन के स्टेप में लिखना है, देन वी यूज दैट फॉर्मूला. अगर हमको साइन की वैल्यू को कॉस के स्टेप में लिखना है, देन वी यूज दैट फॉर्मूला. नाउ राइट द सेकेंड आइडेंटिटी. Second identity is gives relation between the sec and tan. 1 plus tan square theta is equals to
sec square theta. This is the relation between the trigonometric function tan and sec, and we can also evaluate the value of tan and sec with the help of these trigonometric identities. So write here the formula. Tan square theta is equals to sec square theta minus 1. देखिए किस तरीके से, बहुत इजी तरीके से हमको आइडेंटिटी को बस लर्न करना है और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज को फटाफट निकालते चले जाएंगे। tan की वैल्यू को हमने यहाँ से निकाला तो क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा पॉजिटिव सिंबल के साथ है, यहाँ जाएगा तो निगेटिव हो गया। ऐसे ही यहाँ से हम किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 1 की वैल्यू को। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की देखिए दो वैल्यू हमको पता चल गई, एक साइन और कॉस के स्टेप में, एक सेक और tan के स्टेप में। ये सारी वैल्यूज हमारी स्क्वायर फॉर्म में ही लिखी जाती हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, अगर साइन प्लस कॉस दिया है तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, साइन स्क्वायर होना चाहिए प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, देन वी यूज द वैल्यू 1। नोट करते हैं और अब हम थर्ड आइडेंटिटी को समझते हैं। देखिए the third trigonometry identities gives a relation between the cosec and cot. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Here we can also evaluate the two formulas with the help of this trigonometry identities. Cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. कैसे आया, 1 को हमने ट्रांसफर किया, पॉजिटिव साइन था तो निगेटिव साइन के साथ में जाएगा। सो हियर वी कैन राइट cot square theta is equals to cosec square theta minus 1. Now we can evaluate the value of 1 with the help of this trigonometry identities. How we can write it? 1 is equals to cosec square theta. ये तो पहले से ही यहाँ प्रेजेंट है राइट साइड में। अगर हम cot स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा निगेटिव सिंबल के साथ। So we can write 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta. देखिए एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे देते हैं जब आप प्रूफ दैट बेस्ड क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में ये दे रखा है कि कॉट को इन्होंने पहले दे दिया रिवर्स करके माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू रिवर्स है तो यहाँ भी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ऐसे इसकी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर लिखा है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर देन बी राइट हियर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंबल अगर वैल्यूज को अपोजिट करके लिख रहे हैं तो यहाँ भी हम अपोजिट सिंबल को यूज कर लेंगे। ये थी हमारी बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जिन पर बेस्ड हमको क्वेश्चन अब करने हैं। इसके अलावा भी हम 2 फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। ये हमारी कुछ 2 फार्मूले हैं विच गिव्स रिलेशन ऑफ tan बिटवीन द साइन एंड कॉस। वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ tan इन द फॉर्म ऑफ sin as cos. tan is the fraction of sin and cos. Tan theta is equals to sin theta upon cos theta. And we also know that tan is a reciprocal of cot theta. है ना? These trigonometric functions are reciprocal to each other. Cot को अगर हम लिखेंगे तो cot is equals to 1 upon tan और tan को लिखेंगे तो 1 upon cot because of these are reciprocal to each other. So we can also write here the value of cot is equals to cos upon sin because of it is reciprocal to tan. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब वैल्यू भी तो रेसिप्रोकल होगी। tan होता है, tan को देखिए कब यूज करना है, अगर tan की वैल्यू को हमको sin और cos के स्टेप में चाहिए देन भी राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin अपॉन cos. tan which is the reciprocal of cot and cot is also reciprocal of tan. So we can write here cot theta is equals to cos upon sin theta. ये थी हमारे कुछ बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज और कुछ मैंने रिलेशन बताए हैं tan और cot के जिनको हम लोग यूज करेंगे।
तो फटाफट नोट करते हैं। इसको मैं भी साइड में मेंशन करके भी दूंगी ताकि आपको बता सकूं कि किस ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को कैसे और किस क्वेश्चन में कहाँ पर यूज करना है। और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसको मैंने राइट डाउन भी कर दिया है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि कौन सी आइडेंटिटी को कहाँ पर हमको यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A in the terms of cot A. So first we understand the meaning of the question. क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है कि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हैं sin A, sec A and tan A, इन तीनों की वैल्यू को हमको कॉट ए के टर्म में लिखना है, यानी कि हमको नए नए फार्मूले बनाकर दिखा देंगे एक तरीके से। तो फर्स्ट वी राइट अवर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं? sin A, sec A and tan A. Express it in the term of cot A. Okay, this is our first question, and which says the trigonometry value sin A, sec A, tan A, express it in the term of cot A. sin को cot में कन्वर्ट करके दिखाना है, sec को cot की फॉर्म में, tan को cot की फॉर्म में, इस तरीके से हमको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को। कैसे यूज करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का हम नया नया फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। सो हाउ वी कैन मेक इट सॉल्यूशन। फर्स्ट वी इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबसे पहले हम साइन को ही कॉट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे अब हम सीखते हैं इन आइडेंटिटी को यूज करना। तो तैयार हो जाइए और देखिए हम लोग अब कैसे इसको करने वाले हैं। थोड़ा सा मैजिक, बहुत ही इजी वे होगा, बस हमको करना क्या है। देखिए अभी हम लोगों ने 3 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को सीखा हुआ था और उसकी हेल्प से ये 2 फॉर्मूले निकाले हुए थे, है ना। हर किसी से हम लोगों ने 2-2 फॉर्मूले इवेलुएट किए थे। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा हमको। अब हम इन तीनों में देखते हैं कि 2 में से कोई एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमको क्लियरली मिलना चाहिए, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म अगर मिल जाता है तब भी हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। साइन कॉस। अब ठीक है, इसमें साइन तो हमको मिल रहा है, वेरी गुड, एक आइडेंटिटी तो मिल गई, बट कॉस क्या इसका कहीं से रेसिप्रोकल है? नहीं है। कॉस और साइन का रिलेशन नहीं बन रहा है, सॉरी कॉट एंड कॉस का। भाई इसको अगर हम लिखेंगे भी तो फिर से हमको कॉस अपॉन साइन मिल सकता है। दूसरा देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। हमको ज्यादा क्वेश्चन को लंबा नहीं बनाना है, शॉर्ट वे में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। tan कॉट का रिलेशन है ना। tan और कॉट अपोजिट होते हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं हम इसको निकाल सकते हैं। बट सेक एंड साइन की बात की जाए, देयर हैज नो रिलेशन बिटवीन टू ईच अदर। तो साइन और सेक ये तो ना रेसिप्रोकल है, ना इसको हम एक दूसरे से ऐसे सिंपली रिलेट कर सकते हैं। तो ये भी नहीं यूज होगा यहाँ पर, और ये भी नहीं यूज होगा फर्स्ट वाले में। थर्ड में फोकस करते हैं कॉट। डायरेक्टली हमको कॉट मिल गया। सेकंड साइन एंड कॉसेक, वेरी गुड। साइन एंड कॉसेक विच दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉसेक दिया है, साइन नहीं भी दिया है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके इजिली निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कंप्लीट फिट हो रहा है हमारी इस थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर, कि एक हमारी रेसिप्रोकल वैल्यू मिल गई है और एक तो डायरेक्ट हमको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है। सो क्लियरली हियर वी यूज द थर्ड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, और इनका हमको यूज नहीं करना है। हाउ वी कैन यूज इट? वी नो दैट,
क्या जानते हैं हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से साइन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट? देखिए, हमको कॉसेक नहीं साइन चाहिए, तो साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल है, यानी इसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम एक साइड को ही रिवर्स कर दें, और ये दो साइड दी गई हैं तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड को एक साथ रिवर्स करते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, बहुत इजी है, हमको बस फोकस किस पर करना है कि प्रूफ क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। साइन कॉट को कैसे हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमने साइन और कॉसेक नहीं साइन चाहिए तो रिवर्स होता है। अब इसको रिवर्स करने का मतलब है कि पूरी इक्वेशन को फिर हम एक साथ रिवर्स करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए और अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/कॉसेक स्क्वायर। इस साइड को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमको साइन को लाना है फर्स्ट में। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1/कॉसेक यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको रिवर्स मत करना क्योंकि यहाँ पर हमको कॉट ही चाहिए, कॉट की वैल्यू ही हमको लानी है, तो ये तो हम ऐसे ही नोट करेंगे 1/कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखना है, सिंगल साइन चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, साइन देयर इज वन मिस्टेक। आप देखिए, मैंने इसको थीटा लिखा हुआ है, थीटा ज्यादा हैबिट होती है हम लोग की लिखने की, बट जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो आप उसी एंगल को नोट करिएगा। एंगल ए की बात कर रहा है तो फिर हर प्लेस में आप एंगल ए को ही लिखिए। इसमें हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाइए। एंगल ए बी कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, तो आप वही नोट करेंगे। यहाँ थीटा था इसलिए मैंने इसको थीटा नोट डाउन किया था, आप इसको चेंज कर लीजिए। स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर किसकी फॉर्म में जाएगा, रूट की फॉर्म में, यानी होल रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? साइन ए इज इक्वल्स टू, देखिए 1 का कितना भी पावर हो, आप चाहे रूट निकाल रहे हो, कितनी भी पावर मेंशन की जाती है तो वैल्यू 1 ही आनी है, बिकॉज जिसकी वैल्यू के ऊपर जितना पावर होता है उस चीज की उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई की जाती है। तो इसका मतलब हुआ √1 अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। √1 की वैल्यू तो 1 होगी, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, 1 वैल्यू अलग है, कॉट स्क्वायर अलग है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 1 को स्क्वायर की फॉर्म में मैम लिख सकते हैं तो कट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये होल स्क्वायर होना चाहिए तभी आप कैंसिल करेंगे। अलग अलग दो टर्म्स की वैल्यू को एक साथ कट नहीं करते हैं। तो बस ये हमारा रिलेशन हो गया पहले क्वेश्चन का, रिलेशन बिटवीन द साइन एंड कॉट, जो कि हमको पहली आइडेंटिटी में सिखाना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए तभी हम क्वेश्चन को करना सीख पाएंगे। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं धीरे धीरे, तो प्रिपरेशन को अपना जारी रखिए और फटाफट रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, हमको बोर्ड्स में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करना है। अब हम सेकेंड ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू को सॉल्व करते हैं। क्या हमको निकालना है, सेक की वैल्यू को लिखना है कॉट ए के टर्म में। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सेक इन द टर्म ऑफ कॉट, हाउ वी कैन राइट इट,
एंड कौन सी आइडेंटिटी अब हम यूज करेंगे, अब थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए कि कैसे हम यहाँ पर किस आइडेंटिटी को यूज करें। देखिए सेक और कॉट आ रहा है, तो कॉट इस आइडेंटिटी में मिल रहा है हमको साफ साफ, बट सेक देयर हैज नो रिलेशन बिटवीन टू ईच अदर। सेक एंड कॉसेक ये तो रेसिप्रोकल होते नहीं, आपको रिवर्स वाला मैंने एक ट्रिक बता दिया है। एक आपको डायरेक्टली देखना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अदर आपको कोशिश करनी है कि वो रिवर्स ही मिले। अगर सेम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रिवर्स फॉर्म में मिल जाए, उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो सेक किसका रिवर्स है, कॉस का, यानी कॉस और कॉट आना चाहिए। किस में आएगा, कॉस, कॉट नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती। कॉट है बट सेक या कॉस नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती है। ये आइडेंटिटी में सेक तो डायरेक्टली मिल रहा है, वेरी गुड। कॉट, कॉट तो नहीं है बट इसका रिवर्स क्या है, टैन। तो सिंपली हम लोग इस आइडेंटिटी को ही यहाँ पर यूज करेंगे। समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पता कर रहे हैं कि किस आइडेंटिटी को यूज करें। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी फिर मैंने थीटा लिखा है, थीटा नहीं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही तो आप ए लिखिए। इसको थोड़ा फोकस करिएगा कि हैबिट पड़ी हुई है थीटा एंगल मेंशन करने की, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें आप तुरंत ही उसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब क्या रेसिप्रोकल करने की नीड है हमको या नहीं है। सेक एंड कॉट, सेक तो हमको डायरेक्टली मिल रहा है और हमको क्या चाहिए यहाँ से, कॉट की वैल्यू। लेकिन दो टर्म है हमारे पास, हमको तो ओनली कॉट चाहिए, तो पहले तो हम 1 को ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 को ट्रांसफर करने पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, सॉरी tan square a is equals to sec square a minus 1. Here we can write it with the help of transformation rule. Now we can write it in the term of cot. देखिए tan एंड cot एक दूसरे के रिवर्स है तो इसको रिवर्स करना होगा, तो एक साइड को रिवर्स नहीं दोनों को एक साथ करेंगे। रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नोट करिए और अब आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या आया है, 1 अपॉन tan स्क्वायर, 1 अपॉन tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, यानी कि कॉट स्क्वायर है 1। अब इसको भी मत चेंज कर दीजिएगा क्योंकि हमको कॉट और सेक, फटाफट आपको ये देखना है कि किसकी बात की जा रही है, वो दोनों एंगल मिल जाए फिर आप कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो कॉट भी मिल चुका है हमको, सेक भी मिल चुका है, तो अब हम इसमें किसी को रिवर्स नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रखेंगे। सिंगल कॉट की वैल्यू 1 सेकेंड, ओके, यहाँ हमको सेक की वैल्यू कॉट के टर्म में लानी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, जिसकी वैल्यू पहले लानी है उसको पहले ही रखना, ये चीजें ध्यान रखनी है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, +1। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। समझ आया कि मैंने क्या किया है, सेक को पहले लिखना है तो फिर हम सेक को इधर ही रखेंगे, कॉट को मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से दोनों को एक दूसरे के रिवर्स लिख लिया। आगे देखते हैं,
अब देखिए हमारे पास फाइनली सारी वैल्यूज आ चुकी हैं सेक और कॉट की। सेक पहला टर्म है और राइट साइड में हमको कॉट चाहिए, कॉट भी मिल चुका है। बस एक चीज हमको सॉल्व करनी है, यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर को गायब करेंगे तो ये क्या बनेगा सेकेंड साइड में, रूट की फॉर्म में, होल रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ भी दो टर्म बन रहे हैं तो रूट कैंसिल नहीं होगा, होल स्क्वायर होता तो कैंसिल कर देते, तो ऊपर तो आपका यही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बट इन द डिनोमिनेटर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर है। अब रूट भी है और सिंगल टर्म का स्क्वायर लिखा है तो ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचेगा, कॉट ए। दैट इज अवर फाइनल आंसर, द रिलेशन बिटवीन सेक एंड कॉट। देखिए ये जो मैं कुछ आपको छोटी छोटी चीजें बताती जाती हूँ कैलकुलेशन की कि रूट को स्क्वायर में कैसे कैंसिल कर रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करिए। मैं हर एक वीडियो में हर एक चीज को आपको छोटी छोटी बातों को बताती हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादातर बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक ही की होती हैं, मेथड पता है, कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी गलतियां होती हैं और आपके पूरा नंबर गायब होता है। तो फिर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और शॉर्ट वीडियो को भी देखा करिए। मैं उसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज फॉर्मूले मेंशन करती जा रही हूँ। आगे के भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे फॉर्मूले आपको शॉर्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी बच्चों के साथ में, ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके हमारे चैनल के साथ में। और क्योंकि आप लोग देखिए सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है कि और भी बेहतर से बेहतर क्लासेस ला सकें आप लोगों के लिए हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा, इन विच tan a की वैल्यू हमको बतानी है कॉट ए के स्टेप में। थर्ड सॉरी, tan a इंटू कॉट ए। अब आप ये मत करिएगा tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो आप सीधा यहाँ tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan इज इक्वल टू 1 कॉट ए लिख देंगे, बात खत्म हो गई। देखिए ये तो सिंपल एक फार्मूला ही है, तो ये तो पता है एग्जामिनर को, आपको सीधा यहाँ पर ये नहीं नोट करना है, आपको इसको इवेल्युएट करके दिखाना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, वी नो दैट द रिलेशन ऑफ tan इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो थोड़ी तो मेहनत आपको यहाँ करनी होगी, बहुत ही इजी वे से सीधा फॉर्मूला नहीं छापना है। ठीक है, tan ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए होता है। लेट बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड कॉट विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, इट मीन्स दैट कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इक्वेशन नंबर 2, if we multiply both of the equation then we get the value of tan and cot. Equation first multiplied by equation number second, tan a, देखिए राइट साइड को राइट से सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ में सॉल्व करना है, राइट वाली को राइट में सॉल्व करना है। चाहे मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन करिए, एडिशन करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, जो भी चेंजिंग करनी है लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट ही करनी है हमको। तो tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। Here these values are opposite to each other, so we can cut it. Sin से sin cancel, cos से cos cancel within the one term. इसका मतलब हुआ tan a into cot a is equals to 1. ठीक है, tan a into cot a is equals to 1 आया है। तो हमको किसके स्टेप में चाहिए, tan पहले और cot सेकेंड साइड में, यानी tan a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, मल्टीप्लीकेशन में है, ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, डिवीजन में। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर।
tan is the reciprocal of 1 upon cot A. We proved it. तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कितने अच्छे मैजिक के साथ में। मैंने आपको बहुत कोशिश की है अपनी पूरी की बहुत ही इजी तरीके से सिखा सकूं कि कैसे इजी तरीके से हम लोग इन तीनों वैल्यू को यूज करेंगे और आसानी से इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। और जल्दी ही आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस को भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन आसानी से जल्दी हो सके। हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलने लगे। और so let's start our second question, in which the question express write all the other trigonometry ratios of angle A in terms of sec A। इस क्वेश्चन में बताया गया है, देखिए sec A की फॉर्म में हमको बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स देखो sec तो पहले से ही गिवन है, sec की फॉर्म में ही बताना है। तो टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं 6, यानी sec को अगर sec की फॉर्म में बता रहे हैं तो बाकी के बचे टोटल 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस जिनको हम sec की फॉर्म में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का ये मीनिंग था। सो फर्स्ट वी राइट अवर क्वेश्चन देन वी सॉल्व इट। द सेकंड क्वेश्चन इज राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec A। राइट ऑल अदर trigonometric ratios of एंगल ए। देखिए इन्होंने एंगल खुद मेंशन करके दे दिया है कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो थीटा नहीं, आप हर जगह एंगल ए को मेंशन करिएगा इन टर्म ऑफ sec A। ओके, दैट इज अवर क्वेश्चन। सो नाउ वी सॉल्व इट। पहले तो हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की ही बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। सेक में कन्वर्ट करना है तो सेक के अलावा बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आएंगे लाइक साइन, कॉस, एंगल ए, सो वी राइट हियर एंगल ए, टैन, कॉट, सेक। अब सेक नहीं करना है क्योंकि सेक तो ऑलरेडी गिवन है हमको, एंड कॉसेक। Converted in the term of sec A। तो एक एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है टोटल जिनको हमको sec A की फॉर्म में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin A जिसको हमको बताना है sec A के फॉर्म में। अब फिर से हम अपना वही पुराना मैजिक यूज करेंगे कि कैसे हमको दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर मिल रहे हैं। देखते हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शंस है वो बताता है रिलेशन साइन और कॉस के बीच में। साइन तो डायरेक्टली हमको मिल गया, सेक विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस तो बहुत ही अच्छा है, हमको आगे जाने की अब जरूरत ही नहीं। पहला ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो इसमें सीधा सीधा रिलेट हो रहा है। सो वी यूज हियर द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नंबर first। We know that the sum of square of the sin square theta plus cos square theta is equals to 1। sin square theta plus cos square theta is equals to 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, साइन की वैल्यू पहले तो ये तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, कॉस सेक होना चाहिए राइट साइड में, तो यानी बाकी की सारी चीजों को क्या करेंगे राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। सो वी कैन राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सारी वैल्यू मिल चुकी है हम लोगों को। अब साइन पता हो गया, सेक नहीं पता है, बट हमको ये पता है सेक और कॉस एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सो वी कैन राइट इट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बिकॉज ऑफ कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। ओके, नोट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए जो हमको चाहिए था पहला साइन सेक की फॉर्म में लाना है वो हमको सारा मिल चुका है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक इसका तो डिनोमिनेटर है बट इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, तो यहाँ हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब भी आपको इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन मिल रही है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 1 इंटू सेक स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर है -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली साइन ए नॉट साइन स्क्वायर। फिर से मैंने इसको थीटा ही मेंशन किया है, थीटा ज्यादा ही लिखने की हैबिट है क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ एंगल ए है तो आप एंगल ए ही मेंशन करिएगा। साइन ए स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आएगा रूट की फॉर्म में, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल्स टू, दो टर्म है, स्क्वायर है नहीं कैंसिल होगा, सॉरी रूट है नहीं कैंसिल होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे sec square a -1। Here the only one term within the square form और इसके ऊपर लगा है रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, नीचे बचा sec। That is the final relation between the sin and sec। तो हमारा पहले वाले का सोल्यूशन आ गया है, जी साइन और सेक का रिलेशन था। आगे देखते हैं। अच्छा यहीं से हम कॉसेक को भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उससे क्या होगा ना, थोड़ा इजी पड़ेगा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, तो आप फटाफट कोशिश क्या करिए, हमको अपने टाइम को भी बचाना है। बोर्ड एग्जाम में इतना फोकस करिएगा कि आपको जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करनी है। कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं, कॉसेक विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ओके। बट हमको तो वैल्यू साइन के टर्म में नहीं चाहिए, हमको तो सेक और कॉसेक को रिलेशन में दिखाना है। तो क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम कॉसेक की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन। साइन की वैल्यू हमने फर्स्ट में निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो पहले का सोल्यूशन आया है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इट। ये वैल्यू इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, याद रखिएगा वैल्यू क्या थी हमारी, cosec a इज इक्वल्स टू साइन का जो वैल्यू था वो आया था हमारा रूट सेक स्क्वायर -1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे, मैं आपको पूरा ही नोट डाउन करके बताती हूँ ताकि डाउट ना हो कोई भी। साइन की वैल्यू नोट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, न्यूमरेटर, ठीक है, फर्स्ट वाले का डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हमारी है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, इसको रिवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सेक कहा जाएगा ऊपर, यानी ये बनेगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। दैट इज द रिलेशन बिटवीन कॉसेक एंड सेक। अच्छा एक चीज और है, इतना भी ना कर सकते हैं अगर आप, तो क्या करिएगा, सीधा ये अपोजिट लिखना है। तो जो भी साइन की वैल्यू आई है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर सीधा ही रिवर्स करके लिख लीजिएगा अगर ये कैलकुलेशन करने में आपको कठिनाई हो। वैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि आपको इसको नोट करना है और इसको सीधा अपोजिट कर देना है, ठीक है, सिंपल, इसको रिवर्स करके लिखना है। ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू, दो वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम तीसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। टोटल हमको 5 बतानी है। तीसरा क्या था, साइन हो गया, कॉसेक हो गया। अब हम बात करते हैं टैन की। तो टैन को किस में बताना है, टैन को सेक की फॉर्म में बताना है, ठीक है। एज वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन टैन एंड सेक डायरेक्टली ही रिलेशन पता है, बहुत अच्छी बात है। इसको तो हम सेकंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को ही सीधा यूज कर लेते हैं।
1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। देखिए मैंने यहाँ थीटा नहीं नोट किया है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा मतलब एंगल ए, थीटा नहीं क्योंकि थीटा इसके रिस्पेक्ट में था और यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। -1 होगा, देखिए ओनली tan होना चाहिए, 1 को ट्रांसफर करेंगे। स्क्वायर भी नहीं, सिंगल फॉर्म में चाहिए तो रूट जाएगा सेकेंड साइड में, तो tan a इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर a -1। बस इसके आगे नहीं सॉल्व करेंगे, सिंगल हमको tan चाहिए जो कि आ गया है। रूट से स्क्वायर यहाँ नहीं कैंसिल होगा क्योंकि 2 टर्म दिए हुए हैं, तो यही हमारा फाइनल रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी हम इसी की हेल्प से निकाल लेते हैं। देखो जो भी एक दूसरे के रिवर्स है आप डायरेक्टली सॉल्व करते जाइए। कॉट नंबर 4, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो जब रेसिप्रोकल है tan का तो इसको भी हम डायरेक्टली रिवर्स कर देते हैं। ये वाली लिखी रहती है ताकि हम लोग इसको यूज करके आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कॉट ए को नोट डाउन करना है इन द टर्म ऑफ सेक। as we find here the value of tan in the term of sec a, tan is equals to root sec square a -1, so we put this value in this cot. We know that cot is equals to 1 upon tan. These trigonometric functions are reciprocal to each other, so we can write here cot a is equals to 1 upon the value of tan a is sec square a -1. That is the relation between cot and sec. We proved it. Now we evaluate the relation between the cosec। किसका रिलेशन बचा हुआ है? साइन कॉसेक का बता दिया हम लोगों ने, tan एंड कॉट का भी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी सेक और कॉस का देखिए सेक को हम निकालना ही नहीं है क्योंकि सेक की तो बात ही कर रहे हैं, तो कॉस को सेक के फॉर्म में बस नोट करेंगे। नंबर 5, ये तो और भी आसान है, कॉस को किसकी फॉर्म में बताना है? सेक की फॉर्म में। These are directly reciprocal to each other, so we can write here cos is equals to 1 upon sec। देखिए हो गया, कितना इजी था। एक एक पॉइंट को मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूं, और फिर भी अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कुछ भी अगर कहीं पर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, which is MCQs based. Choose the correct option and justify your choice। देखिए मतलब आपको यहाँ सॉल्व भी करना है, सॉल्व करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड करेंगे, तो नोट करिए फटाफट और हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए हमारा टारगेट है आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर करना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा सके, पूरी कोशिश रहेगी, और जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियोस ला सकें, जिससे आपकी क्लासेस, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो और सिलेबस वाइज सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे, हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ मैथ्स की ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि अपनी कैलकुलेशन को आप लोग जल्दी ही स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमको अपना एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, टाइम की बचत करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन का मेथड्स आने चाहिए, साथ में आपकी कैलकुलेशन भी करेक्ट होनी चाहिए। Now we discuss the question number 3 in which choose the correct option and justify your answer. These questions are based correct. These questions are like MCQs based.
The first question is 9 sec square a minus 9 tan square a. Write down our question number 3. The first part is 9 sec square a minus 9 tan square a. Solve it. तो आप देख रहे होंगे कि इन जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं 8.3 के, हर एक क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज ही हो रही है, और कैसे यूज हो रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, बस रिवीजन आपका काम है। जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतनी ही अच्छी होगी, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नाउ सॉल्व इट। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले हमारा काम होना चाहिए कि देखिए क्या उस इक्वेशन में कुछ भी कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले उसको गायब करते हैं। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन है, इसको बाहर कर दीजिए। भाई तुम दोनों के साथ में आ रहे हो तो तुम तो बाहर हो जाओ। माइनस tan स्क्वायर ए। नाउ वी कैन राइट हियर sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर ए। कौन सी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में ये आ रहा है? ये सेकेंड आइडेंटिटी, which gives the relation between sec and tan. यहाँ से मैंने सेकेंड फॉर्मूला इवेल्युएट करके आपको बताया था, द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. सो वी कैन राइट हियर 1. 9 into 1 यानी कि 9. देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ये हो गया हमारा थर्ड का पहला क्वेश्चन। The second part of question number 3, in which 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta is equals to. Here given is 4 options, 0, 1, 2, minus 1. Which option is correct? So solve it and find the correct option. Write down the question number third, part number second. 1 plus tan theta plus sec theta in one bracket, bracket close, and in other bracket 1 plus cot theta minus cosec theta. This value is equals to, how we can find it? Solve this question. देखिए, क्या कोई डायरेक्टली रिलेशन इन दोनों में बन रहा है? आई थिंक नहीं। अगर यहाँ वैल्यू सेम होती तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे, बट ऐसा ये नहीं यूज हो रहा है क्योंकि tan cot रिवर्स फॉर्म दी है, sec और cos तो रिवर्स नहीं होता है, खैर सेकंड cosec रिवर्स नहीं है। तो ये एक तरीके से सारे ही डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम ये वैल्यू तो नहीं यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको tan sec cos x, हर वैल्यू को sin एंड cos के टर्म में चेंज कर लेते हैं। हो सकता है उससे इजीली हो जाए क्वेश्चन। tan को क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos। cos को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, सॉरी sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, एंड हियर वी कैन राइट cot which is the fraction of cos theta upon sin theta, and cosec which is the reciprocal of sin, so we can write here 1 upon sin theta. यहाँ थीटा ही यूज करेंगे है ना, क्योंकि थीटा के ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अभी आगे सॉल्व करते हैं। cos and cos same denominator, so we can write here cos theta, the whole LCM of three terms, तीनों का ही cos हो जाएगा। देखिए यहाँ तो cos है, यहाँ भी cos है, सेम डिनोमिनेटर है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ हमारा cos नहीं दिया गया है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, एंड इन अदर ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा।
ये कैसे आया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये दोनों फ्रैक्शन को पहले मैंने सॉल्व किया है, इन दोनों वैल्यू को। तो कॉस कॉस सेम डिनोमिनेटर था, एलसीएम कॉस हो गया, ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम सेम रहता है। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने इसका कॉस थीटा, तो ये वैल्यू वेरिएट हो गई। यहाँ भी सेम साइन इक्वल है दोनों में, तो साइन थीटा कॉस थीटा -1 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में किया तो साइन थीटा आया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी कुछ सेम बन चुकी है। इसको हम एक जैसा बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस 1 को भी तो हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्या नोट डाउन कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तो जगह है नहीं है हम लोग के पास में। ठीक है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए और देन हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, नोट करते हैं फटाफट और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हम लोग के पास स्पेस अब हमको चाहिए, तो इसको इरेज कर लिया और आगे देखते हैं क्या इसमें किया जा सकता है। देखिए, अगर हम ये दोनों ही टर्म इक्वल है ना, दोनों साइड में, तो इसको हम पहले सही से नोट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा विद इन द 1 ब्रैकेट एंड इन अदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी लास्ट में अभी आई हुई है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, वैल्यू सारी दोनों हमारी सेम है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 एंड -1, ये कुछ हमारा इस तरीके से बन रहा है। सिंस वी यूज आइडेंटिटी, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। हियर वी यूज इट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये देखिए एक वैल्यू हमारी ये सेम आ रही, यहाँ पर एक का काम कर रहा है साइन a प्लस कॉस a और b का काम कर रहा है 1। सो वी कैन राइट हियर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एंड नीचे क्या होगा इंटू के साथ में ना, इसीलिए हम लोगों ने इसको यूज किया। प्लस माइनस होता तो नहीं यूज कर सकते थे। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। Now again we use the algebraic formula a plus b का whole square, since a plus b का whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. We use it in this equation, then we find the value of this. a की जगह प्लेस में आ रहा है साइन एंड b के प्लेस में आ रहा है cos, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। एंड -1 का स्क्वायर तो होगा 1, एंड डिनोमिनेटर क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। Sin square plus cos square, the first trigonometry identity, the value of this trigonometry identity is 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1 upon cos theta into sin theta.
these values are same with opposite function with opposite symbols, so we can cut it. +1 -1 इन दोनों को कट कर देंगे. लास्ट में हम लोग के पास बचा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. देखिए सेम ही है, दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है और पहले बाद में इससे फर्क नहीं पड़ता है. कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, देन द फाइनल आंसर इज 2. तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? द ऑप्शन नंबर 3 इन विच द वैल्यू गिवन इज 2, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. C is the correct option. The question number 3, part number 2. Now we solve the part number 3 of question number 3. Write down it, then we solve it, the part number 3. Question number 3, part number 3. In the part number 3, here is mentioned sec a plus tan a in the one bracket and in the other 1 minus sin a is equals to. Which option is correct? Sec a, sin a, cos sec a and cos a. Here given 4 options. So let me know which option is correct. Write down the question. The question number 3rd part, sec a plus tan a and in other bracket 1 minus sin a. So let's solve it. देखिए थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि क्या फॉर्मेट यहाँ यूज किया जाए. सेक और टेन आ रहा है और उधर में सिंपली साइन आ रहा है. इसका मतलब है कि हमको इन दोनों को भी साइन के टर्म में चेंज करना है. तो चेंज कर लेते हैं. साइन कॉस के टर्म में cos which is the reverse of sec which is the reverse of cos and then we can write here sin a upon cos a. और इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट को हमने साइन और कॉस में ऑलरेडी चेंज कर दिया है. ये क्या होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे. कॉस ए डिनोमिनेटर आर सेम, सो वी कैन राइट है 1 प्लस साइन ए. डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हमारा सेम होगा. न्यूमरेटर को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया करें. बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर ही मल्टीप्लिकेशन होती है. ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. फिर से हमारा वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने जा रही है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 की पावर कितना भी हो 1 आता है. जो हमारी लास्ट वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस ए. ठीक है. 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी टर्म में चाहिए हमको, कॉस की टर्म में. जिसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर है और डिनोमिनेटर है कॉस है. देखिए सिंगल टर्म है, इनको हम कट कर सकते हैं. 1 पावर इससे कैंसिल हो गई तो कितना बचा ओनली कॉस ए. दैट इज फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3. So which option is correct? In option number D, there is given cos A value. So option number D is correct on part number 3 question. Option number D is correct. Now solve the last part, part number 4.
Here the mentioned value 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है. There is a 4 option is given. In the first sec square a, the second -1 and third cot square a, number fourth tan square a. So which option is correct? How we can determine it? Solve the question number 4th. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Solve this question. देखिए tan और cot, ठीक है, इसको हम sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने दोनों फॉर्मूलों को, यहाँ पर हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं. कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. फिर से इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ पहले से ही कैसे कैलकुलेशन की जाती है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन, इससे मल्टीप्लिकेशन की जाएगी तो हमको होल डिनोमिनेटर मिल जाएगा. 1 इंटू कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. एंड इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1. The first trigonometric identity. Here is also we can write 1, the first trigonometric identity. Now solve it. 1 upon cos square theta. These values are given within divisions. So if we change in multiplication, then opposite the values. So we can write here the 1 upon sin square. ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भी कन्वर्ट कर देंगे. sin square theta upon 1. 1 से 1 कैंसिल आउट. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan. इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, इन विच मेंशन द वैल्यू tan a. So the option number D is correct. tan a स्क्वायर थीटा. थीटा भी चल रहा है, ए में चल रहा है. इसको थोड़ा फोकस करिएगा. ए में वैल्यू चल रही है तो आप इसको ए एंगल में ही रिप्रेजेंट करें. ठीक है. एंगल ए, बस यही फोकस करना है. लास्ट में एक बार चेक कर लिया करें कि एंगल हम लोग को थीटा लिखने का ज़्यादा हैबिट होता है क्योंकि थीटा में एंगल मेजर पढ़ रहे हैं हम लोग. और जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको आप नोट डाउन करिएगा. तो ये था आज का हमारा सेशन. इसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे ऑप्शन सॉल्व किए हैं और बहुत कुछ सीखा है कि कैसे हम इन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं और आगे जिस के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है उसको इवेलुएट करते हैं. ये आज हमारा टॉपिक था क्लास 10 का, जो कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस थे, सीबीएसई बोर्ड. और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे जिसमें कि प्रूव दैट बेस्ड क्वेश्चन है. तो आगे भी हम लोगों को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रूव दैट सीखने वाले हैं. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड शेयर जरूर किया करें. अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें आप लोग. और कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.